A very good morning to all of you. Today, as we gather here, we celebrate a special occasion that brings us together millions of people around the globe. International Yoga Day, observed every year on June 21st. This day highlights the importance of yoga, a practice that transcended boundaries, cultures, and generations. Yoga is more than just a series of postures or stretches. It is an ancient art that connects the mind, body, and spirit, fostering a sense of peace and well-being. Originating in India over 5,000 years ago, yoga teaches us importance and harmony in our lives. In today's fast-paced world, here, stress and distractions are all around us. Yoga serves as a powerful tool to restore balance and community. As students, you face numerous challenges every day. Balancing academic pressures, social situations, and personal growth can sometimes feel overwhelming. Here's where yoga comes in help. By practicing yoga, you not only strengthen your body but also cultivate a positive mindset. It encourages mindfulness, enabling you to be present in the moment, which can greatly enhance your focus and productivity. Let's not overlook the physical benefits as well. Regular practice can improve flexibility, strength, and postures, while also boosting your immune system. A strong and healthy body supports a sharp and agile mind. Remember, taking care of your physical health is just as important as your academic pursuits. Moreover, yoga promotes emotional resilience. In our lives, we will inevitably face setbacks and stresses. Learning to manage these challenges through practices such as meditation and deep breathing can help you respond to adversity with grace and composure. Today, I encourage each of you explore yoga. If you have not already, it does not require any special equipment or advanced skills, just a willingness to learn and openness to new experiences. Whether you start with a short 10-minute session in the morning or join a community class, you will surely benefit from this transformative practice. On this International Day, let us commit to incorporating yoga into our daily routine, not just as a physical exercise, but as a way to foster a holistic approach to our health and well-being. Together, let us celebrate the unity of minds, bodies, and spirits, and let this practice guide us towards a brighter, more harmonious future. Thank you and happy International Day. ताज़ी ताज़ी सब्जी खाओ, ताज़ी ताज़ी सब्जी खाओ, बीमारी से खुद को बचाओ। जिस्म से उतरेगा मोटापन, सुबह को वर्जिश की जाओ। चाहे तला हो चाहे बुना हो, चाहे तला हो चाहे बुना हो, देर ग़िज़ा कम ऐसी खाओ। पानी पी लो जी भर के तो,
पानी पी लो जी भर के तुम, खुद पी लो औरों को पिलाओ। मेवे से क्या बेहतर होगा, मेवे से क्या बेहतर होगा, लेकिन मेवा धोकर खाओ। ब्रश करके तुम सुबह को तुम ब्रश कर लेना, शाम को तुम भी ब्रश कर लेना, ऐसे ही मत तुम सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्योंकि आज हम बैनुल अक़वामी सतह पे योगा डे मना रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि हमारी रोज़ी मैडम ने वजह तौर पर फरमाया कि इस दिन की क्या अहमियत है, हम योगा क्यों करते हैं, योगा के क्या फ़वाइद हैं। हमें चाहिए कि हम इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करें। एक वक्त ऐसा था जब इन चीज़ों की चंदा ज़रूरत नहीं। मुझे अपना वक्त याद है, मुझे अपना बचपन याद है। घर वालों ने कह के रखा होता था कि फलानी जब स्कूल से लौटे तो उसे कहना खेत पे आना, उसे कहना बाग में आना, उसे कहना बाड़ी में आना, वहाँ पे काम है। हम स्कूल भी जाते थे लेकिन दिन भर काम करते थे, खेतों में होते थे, बागों में होते थे, खलियानों में होते थे, बाड़ी में होते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, दरिया पर नहाने जाते थे, 2-2 किलोमीटर दूर जाते थे। हम हमेशा एक्सरसाइज करते थे, वर्जिश करते थे। लेकिन आजकल हम वर्जिश नहीं करते। आजकल क्या हुआ है, काम अब खत्म हो गया है, अब हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं रह गया है। यही वजह है कि इस योगा की या एक्सरसाइज की अहमियत रोज अफजू बढ़ रही है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक्सरसाइज करें, घर में हम एक्सरसाइज करें। हम जो हमारा माइंड सेट है इसको पॉजिटिव रखने की अज हद कोशिश करें। अगर हम अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखेंगे तो जिंदगी के काम जो है उन्हें करने में हद से ज़्यादा आसानी होगी। और एक्सरसाइज के बेशुमार फ़वाइद हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो टेंशन होती है वो कम हो जाती है, जो जहन पे दबाव होता है वो दबाव कम होता है। अब एक्सरसाइज अगर हम YouTube पे देखेंगे, अगर हम गूगल पे जाएंगे तो एक्सरसाइज का तरीका अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कोई एक तरीके की एक्सरसाइज बताता है, कोई दूसरे तरीके की एक्सरसाइज बताता है। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है काम इस तरह करो, कोई कहता है इस तरह, कोई कहता है पीछे से जाओ, कोई कहता है इस तरह करो। और जहाँ तक मैं वहाँ गया, जहाँ तक मैं जान गया, हर कोई हरकत एक्सरसाइज है। जिस्म की हर कोई हरकत जो है वो एक्सरसाइज है। कोई भी हरकत आप कर लें वो एक्सरसाइज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया है, जिस तरह सिटिंग है ना, अगर इस तरह हम मूव करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह हम मूव करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर दिन ये शेड्यूल बनाएं हम कि कम से कम 10, 20, 15 मिनट हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें और वॉक भी करें। अगर इवनिंग वॉक मुमकिन हो तो इवनिंग वॉक जो है वो ज़्यादा ही हमारी बॉडी के लिए मुफीद है। इस दिन के हवाले से यही पैगाम है कि पढ़ाई के साथ साथ अब चूँकि इंसान बंद कमरों का शिकार हो गया है, हम घर जाते हैं तो कमरे में खुद को बंद करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, मोबाइल हाथ में रहता है तो फिर खाना पीना भी हम भूल जाते हैं। ये घर घर की हालत है, ये फर्द फर्द की कहानी है, ये घर घर की हालत है, ये फर्द फर्द की अब कहानी बन चुकी है। लिहाजा हम इससे निकलें, हम एक्सरसाइज करें, हम भरपूर वर्जिश करें, हम वॉक करें, ताकि जो हमारा माइंड है, जो हमारा जहन है, उसको भी राहत मिले, जो हमारा माइंड है उसको भी राहत मिले। क्योंकि जब हमारा दिमाग जो है जब ये सेहतमंद होगा, जिसमें सेहतमंद दिमाग का होना बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा सेहतमंद दिमाग जिस्म में पैदा करने के लिए वर्जिश ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है इस दिन के हवाले से जो चंद बातें रोज़ी मैडम ने आपके सामने रखी, जो चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, हम सब इस पर अमल पैरा होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।